अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे एनिमल किंगडम के। तो पहले हम जिसकी बात करेंगे दैट इज द सिमेट्री। सो व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज द रिपीटिशन, इट इज द रिपीटिशन in arrangement of parts. Repetition in arrangement of parts. For example, repetition in the arrangement of eyes, one eye second, one nostril second, okay, then one ear second, one. So there is repetition. So a character or a part of body is repeated. What happens by that? Due to which organism can be divided into two equal halves. Where one half of the body is exactly the copy of another part or another half. We are going to talk about that and we are going to explain that in detail. So don't worry about that. On the basis of this symmetry, we divide organisms into two categories. One of the category is of asymmetrical organisms. वो organisms जो asymmetrical है, and another is जो symmetrical है. Asymmetrical organism आप किसे कहेंगे? Asymmetrical organism where there is no repetition of arrangement. Where there is no repetition of arrangement of parts of the body. उससे क्या होता है? We can't divide this organism into two equal halves. So the organism can't be divided. So the organism can't be divided into two equal halves. For example, अगर हम अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अमीबा का स्ट्रक्चर तो हमने देखा ही होगा, क्योंकि ये हम 8, 6 बल्कि उससे भी छोटी क्लासेस से इसका नाम तो हम सुनते ही हैं एटलीस्ट. सो हमें पता है अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता. अगर इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है देन वी कांट डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हाफ्स. अगर हमने किया भी then one part of the body will not be exactly the similar copy of another. So that is what we mean by symmetry. तो इसमें symmetry नहीं है, it is asymmetrical, right? So another example is adult snail, जिसके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि आप इसको टू इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं कर सकते. एंड मोस्ट ऑफ द स्नेल्स, most of the mollusks, shell-bearing organisms, they lose their particular symmetry when they become adult. Okay, so that's why कि ये मोलस्का जो है ये asymmetrical है और अमीबा भी asymmetrical है एंड एडल्ट स्नेल भी asymmetrical है. और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो हम इतनी एग्जांपल्स से इसको समझ सकते हैं. Now what is symmetrical? Symmetrical का मतलब the arrangement of the particular body parts is repeated. So there is repetition of arrangement of body parts या of parts due to which organism can be divided. So the organism can be divided into two equal halves. Can be divided into two equal halves. इसके एग्जांपल्स हमें लेटर ऑन पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को लेंगे, इफ अ ह्यूमन बॉडी इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय दिस प्लेन
okay, then the right side of the body is exactly the similar copy of left one. Okay, so अगर हम देखें right side of our body is exactly the similar copy of the left side. So इस केस को हम कहते हैं it is the repetition of characters or it is symmetry. So we are symmetrical. So ये तो डिस्कस हो गया या डिफरेंशिएट हो गया asymmetrical और symmetrical में क्या फर्क है. Now the symmetrical organisms are of various types. Let's talk about that. Now symmetry can be of many types, like first of all there can be, if the symmetry is there, it can be spherical symmetry. जहां आप ऑर्गेनिज्म को कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म है स्फेरिकली सिमेट्रिकल. इसका एक और नाम भी है यूनिवर्सल सिमेट्री. यूनिवर्सल सिमेट्री जिसमें आप एक ऑर्गेनिज्म को कहेंगे कि ये है स्फेरिकली सिमेट्रिकल. क्योंकि इनमें क्या होता है, जनरली इनमें बॉडी होती है, बॉडी इज स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, बॉडी इज जनरली स्फेरिकल इन शेप. अब जो बॉडी स्फेरिकल इन शेप है उसकी वजह से यू कैन कट इट इन एनी वे इनटू टू इक्वल हाफ्स. एक क्रिकेट बॉल को लीजिए, एक फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल को लीजिए, फुटबॉल को लीजिए, आप उसको जितने भी फॉर एग्जांपल प्लेन से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहेंगे यू कैन, बट ओनली थिंग इज कि कट शुड बी थ्रू द सेंटर. सो यू कैन कट इट इन एनी वे इन एनी पर्टिकुलर प्लेन. सो इट इज स्फेरिकल सिमेट्री. एग्जांपल, देयर इज वॉलवॉक्स. Generally, volvox is a colonial organism. So when we write volvox, we write the volvox colony. Volvox colony जो होती है उसमें बहुत सारे volvox आपस में जुड़े हैं और उनने एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. अब आप जहां से भी चाहेंगे उस स्फेरिकल बॉडी को आप कट कर सकते हो into the parts, into two equal halves. So that is what we call as spherical symmetry. Now second is radial symmetry. It is radial symmetry. It is present in organisms which have cylindrical body और वास लाइक बॉडी. तो हर किसी सिलेंडर में रेडियस होता है. इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सिलेंडर, ओके, मैथ्स पढ़ने वालों को अच्छी तरह से पता होगा कि सिलेंडर के पास हाइट होती है, ओके, और इसके पास एक रेडियस होता है. व्हाई? बिकॉज जो फॉर एग्जाम्पल इसका क्रॉस सेक्शन है दैट इज समवट सर्क्यूलर. अब जो इसका क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर है इसकी वजह से जब भी इसके पास रेडियस है तो यू कैन कट दिस ऑर्गेनिज्म, दिस सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म कैन बी कट in any plane, or I can say in any way, into two equal halves, but the cut should be through the center. It should be longitudinal cut through the center. So then it can be divided into two equal halves from any of the sides. Okay. So for example, अगर हम देखें ये मार्कर जो है दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप. तो अगर आप एक कट इसमें डालेंगे which is passing through the center, so you can cut this marker into two equal halves in any of the sides, right? So that is what we call as radial symmetry. लेकिन ऑर्गेनिज्म जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है उनमें जो अपेंडेजेस होते हैं असल में इंपॉर्टेंट वो है. इनमें जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेज मींस जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जो एक्सटेंडेड ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आर्म्स इन आवर केस इज एन अपेंडेज, टेंटिकल्स इन द पर्टिकुलर coelenterata are appendages, okay, and some other things like wings etc, those are appendages. So appendages in these organisms are arranged equally around the center. इक्वली से बेहतर अगर हम यहां पे लिखेंगे यूनिफॉर्मली
uniformly around the center, right? So this is what radial symmetry means. Example, radial symmetry is found in coelentrates like hydra, coelentrates like hydra, क्योंकि सब coelentrates में ये नहीं पाया जाएगा, some of the coelentrates में भी जिनमें दूसरी symmetry पाई जाएगी, लेकिन most of the coelentrates have this type of symmetry, that is radial symmetry, right? The third one is biradial symmetry. Biradial symmetry. Now what is biradial symmetry? Biradial symmetry और bilateral symmetry दो अलग चीजें हैं, वहां कंफ्यूज मत हो जाना. Biradial symmetry रेडियल सिमेट्री ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन अपेंडेज, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ some appendage, these organisms can be divided into two equal halves only by two possible planes. Divided into two equal halves by only two possible planes, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट ऑफ अपेंडेज कुछ इस तरह का होता है कि मोर देन टू पॉसिबल प्लेन्स नहीं है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, कॉम्ब जेलीज, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको सी वॉलनट्स भी कहते हैं, एंड ये आते हैं फाइलम टीनोफोरा में. उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. फाइलम टीनोफोरा, CTENOPHORA, टीनोफोरा, राइट? सो नाउ नंबर 4 इज द बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल symmetry. Now what is bilateral symmetry? Bilateral symmetry का मतलब when an organism can be divided in such a way that right side of the body is exactly the copy of another side, the left side. When two lateral sides are exact copies of one another, or we can say they are symmetrical to one another, Now what is two lateral sides? Lateral की बात करेंगे थोड़ी. Lateral means right and left. Simple, quite easy, pretty much easy to understand. But ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये चीजें अक्सर दिक्कत करती हैं कि व्हाट इज एंटीरियर, व्हाट इज पोस्टीरियर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट. तो अब इन साइड्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे सो दैट ये बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन मिले, और उसके बाद हम एग्जांपल्स ऑफ द बाइलेटरल सिमेट्री पे आएंगे. नाउ फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ साइड्स होते हैं, वेंट्रल, डोर्सल, लैटरल, ओके, एंड हमारे पास और साइड्स होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो ये सब क्या है? वेंट्रल साइड का मतलब द बेली साइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज द वेंट्रल साइड. इट इज द बेली साइड, जहां से पेट होता है. तो अगर हम देखते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, तो इंसेक्ट्स को ऊपर उठा के देखें, इंसेक्ट्स का जो नीचे वाला साइड होता है इट इज वेंट्रल, क्योंकि पेट उनका नीचे की तरफ होता है. ओके, नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल काउज में देखें, या ये चार टांगों पे चलने वाले मैमल्स को देखें, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, तो उनका भी जो नीचे वाला साइड है दैट इज वेंट्रल. लेकिन बाइपेडल लोकोमोशन जिनमें है, जो दो टांगों पे चलते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स एंड एप्स, तो उनमें क्या होता है, उनमें दिस फ्रंट साइड
it is the particular ventral side. Belly side, it is the ventral side. Dorsal क्या है? It is where the vertebral column is. So backbone जिस जहां से है, it is the dorsal side. So it is the area of backbone. And what is lateral? Right and left. So right and left, it is lateral. What is the anterior? A means अगला हिस्सा. The area where the mouth or head is present. जहां से head या mouth present हो, अगला हिस्सा बॉडी का, it is the anterior. And posterior means where the anus is located or the tail region is located. Where the anus is located or the tail region is located or the particular this is the जिसे हम पिछला हिस्सा कहेंगे. So anterior अगला हिस्सा, posterior पिछला हिस्सा. So this is ventral, belly side, dorsal, backbone side, and lateral, right and left, anterior, okay, head side जो ऊपर वाला एरिया, and posterior जो निचला हिस्सा हमारी बॉडी का. So this is the particular, these are the sides of the body. Now यहाँ पे bilateral की जब बात आएगी तो that means organism का right and left side जो है वो आपस में exactly similar है. For example, ये किस में पाया जाता है? इस तरह का जो सिमेट्री है वो पाया जाता है हायर इनवर्टेब्रेट्स में. हायर इनवर्टेब्रेट्स में, हायर इनवर्टेब्रेट्स एक्सेप्ट मोलस्का. मोलस्का के पास जनरली ये बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती. हाँ, इन द लार्वल स्टेज ऑफ मोलस्का बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब वो एडल्ट बनते हैं दे लूज देयर सिमेट्री. उसके बाद एक और है जो एक्सेप्शन है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा का मतलब जिनमें स्पाइनी स्किन होती है. फॉर एग्जांपल स्टारफिश. आपने क्यों कहा स्टारफिश में ये सिमेट्री नहीं है? क्योंकि स्टारफिश दूसरी किसी एग्जांपल में आया भी नहीं. तो इसीलिए मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा. हमने जब रेडियल सिमेट्री पढ़ा था तो रेडियल सिमेट्री में आप ये बात याद रखें, रेडियल में आप ये बात याद रखें, ये जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिज्म सिलेंड्रिकल शेप का हो. वो डिस्क्वाइडल हो सकता है, डिस्क शेप्ड हो सकता है, ओके, या वो फॉर एग्जांपल पेंटामेरस हो सकता है विद 5 रेज, टेट्रामेरस हो सकता है विद 4 आर्म्स. ओके, सो स्टारफिश को अगर हम देखेंगे वो आता है इस तरह का, ये स्टारफिश है. तो ये पेंटामेरस है, इट इज पेंटामेरस. दैट मीन्स इसके 4 आर्म्स हैं जो इक्विडिस्टेंट हैं, जो इक्वल है. ओके, सो जिसकी वजह से ये जो बॉडी है ये रेडियस के हिसाब से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन जो है उस क्रॉस सेक्शन में या इसका टॉप व्यू जो है उसमें एक सेंटर है, ओके, सर्कल की तरह. तो आप इसको रेडियस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो. तो दैट मीन्स ये जो स्टारफिश है ये बाइलेटरल सिमेट्री नहीं दिखाता. इसमें राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता. इसमें 2 ही साइड्स होते हैं, ऑरल एंड एबऑरल. ऑरल का मतलब जहां से माउथ एंड एबऑरल जहां से एनस. तो दैट मीन्स ये एकाइनोडर्मेट्स आते हैं एक्सेप्शन में. इनमें रेडियल सिमेट्री, ये बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होता, इनमें होता है रेडियल सिमेट्री. तो ये एकाइनोडर्मेट और ये मोलस्का, अदर देन these two, all invertebrates, higher invertebrates, उनके पास होता है bilateral symmetry. इसके अलावा chordates में भी होता है bilateral symmetry, सब chordates में होता है bilateral symmetry. So this was about symmetry. Inshallah in the next video we are going to talk about a very interesting character, coelom. Till then, stay blessed. Thank you all of you.